ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର। ଏକତା ଘର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ କପୋତ କପୋତୀ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲା। କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। କପୋତ ସେବକ ପ୍ରାୟ କପୋତୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏପରି ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବା ଫଳରେ କପୋତୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କପୋତୀ ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ଡିମ୍ବ ଜାତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ଆଶାରେ ସ୍ନେହରେ ତାପ ଦେବା ଫଳରେ ଡିମ୍ବରୁ 2ଟି ବାଳକ ଜାତ ହେଲେ। କପୋତୀ କୋମଳ ବାଳକଙ୍କୁ ଜଗି ରହେ। କପୋତ ବନରୁ ଆହାର ଆଣିଦିଏ। ବାଳକ 2ଟିକୁ ଆହାର ଦେଇ ଉଭୟ ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ। କ୍ରମେ ବାଳକଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୋମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାଳକ ମୋହରେ କପୋତୀ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଯାଉନଥିଲା। କ୍ରମେ ବାଳକ ଖଣ୍ଡିଉଡ଼ା ଦେଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଡେଣାରେ ବସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଉଡ଼ାଇ ଶିଖାଇଲେ। ବାଳକ ଦ୍ୱୟ ଉଡ଼ି ପାରିବାର ଦେଖି ଦିନେ ବାପ ମା ଉଭୟ ଆହାର ପାଇଁ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଶବର ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜାଲ ପାତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଞ୍ଚିଦେଲା। ବାଳକ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱୟ ଆହାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଚରୁଥିଲେ। ଆହାର ଲୋଭରେ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କପୋତ କପୋତୀ ତୁଣ୍ଡରେ ଆହାର ଧରି ବୃକ୍ଷ ଡାଳକୁ ଫେରି ବାଳକଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଳକ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କପୋତୀ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାତୃ ହୃଦୟ ମୋହ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଜାଲ ତଳେ ଥାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖ ଦେଇ ଆହାର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। କପୋତ ଡାଳ ଉପରେ ଥାଇ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଅତି ଆଦରରେ ବାଳକମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ପତ୍ନୀ ମୋର ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏକା କରିଗଲା। ମୋତେ ନ ଖୁଆଇ ମୋ ପତ୍ନୀ କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ବାଳକ ମୋହରେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଜାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ସୁଖ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବଞ୍ଚି କି ଲାଭ? ମୋହ ବଶରେ କପୋତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଶବର ଆନନ୍ଦରେ ପିଞ୍ଜରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଏ କଥା ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ସ୍ଥଳରେ କହୁଥିଲେ। ଏପରି କୁଟୁମ୍ବ ମୋହରେ ଜୀବ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। କୁଟୁମ୍ବ ଲାଳସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଅବଧୂତ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ଏ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ବୁଝ। ଈଶ୍ୱର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଫଳରେ ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ ଜୀବ ମୋହ ବଶରେ ନର୍କ ପଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ। କେହି ମୋର ନିଜର ବା କେହି ମୋର ପର ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ବା ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ପାଇଲି। ତେଣୁ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର। 24 ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ଚୋରର କୁଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚୋର ବାସ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଏ। ଘରେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରେ। ଏହି ବାଟରେ ସେ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଚୋରକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଦିନ ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାବିଲା। ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ଚୋର ଭାବିଲା, ଆଜି ତ ଚୋରି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭୋଗ ମିଳିବ। ଭୋଗ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ପାଖକୁ ଗଲା। ପଛରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ସେଦିନ ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥାଏ।
माता यशोदा कृष्ण को प्रभात स्नान कराई विभिन्न प्रकार वेश कराउथांती। कृष्ण वेश गुड़िक चोर मन दे शुणु थाए, कारण माता यशोदा कृष्ण को गलारे मणिमुक्ता हार, हाथ में केउर कंकण, पादरे नुपुर इत्यादि पिंधाई देउथांती। विभिन्न साजरे साजी देई माता यशोदा गोपदाण्डर कृष्ण को चलाई देउथांती। कृष्ण अलंकार मंडित होई नाची नाची दाण्डरे गति करुथांती। गोपाल पुओ माने मध्य कृष्ण सहित नाचुथांती। गोपी गोपाल माने ये दृश्य देखि आनंदित हेउथांती। चोरटी केवल कृष्ण पिंधिथिबा गहना गुड़िक कथा भावुଥାଏ। ये गहना गुड़िकर दाम केते हबो मने मने हिसाब करुଥାଏ। शेष से ठीक कला प्रतिदिन घर घरे पशि चोरी करिया अपेक्षा एका कृष्ण अलंकार चोरी कले सारा जीवन चलीजिवो। तेबे एते घर से चोरी करिवो काहेकि? किंतु ये कृष्ण अछि कोउठी, मु तांको पाइबी कोउठी? शेषर एकांतरे पुराण पंडा को पचारिला, ये कृष्ण अछि कोउठी? पंडा कहले, कृष्ण को खोजुछु, ये तो वृंदावन में थाए। चोर राति सारा केवल अलंकार दाम हिसाब कर लगिला। सकाल हैला चोर कृष्ण पाख वृंदावन चलला। गोदाए बाट पचारि पचारि बहु कष्ट वृंदावन में पहुंचला। सेठारे अनेक साधु संत मान को पचारिला, कृष्ण अछि कोउठी? सेमाने चोर मुह को चाहि हसिले। शेषरे चोर कृष्ण कृष्ण डाकी डाकी केते थर जे जमुना कूल निपमूल नखोईची तार हिसाब नहीं। शेषरे क्लांत होई गोटे गछ मूल बसी पड़ला। पाटिर केवल कृष्ण कृष्ण शब्द बाहर थाए। से शोया अवस्था मधुर वंशीस्वर शुणिला। आखि मेली चाहिबा बेले पुराण पंडा जो भाव भागवत बाल गोपाल कथा शुणाई से ही कृष्ण ता आड़ को आसुची। केड़े सुंदर पिलाटे, श्याम घन कांति, चाहिदेले आखि स्थिर हो जाउची। जो सब अलंकार से दिन पुराण पंडा शुणाई से सब अलंकार पिंधि कृष्ण आसुची। मन आनंद रे नाची उठिला। कृष्ण पाखक आसी कहले, मो देहरु क्यों अलंकार नेबार तो इच्छा कि सबुतक नबु, यही खणी ओलाई देवी। चोर भाविला, एड़े सुंदर रूप माता यशोदा केड़े श्रद्धारे पिंधाई देइचंती। जो गोटिक मु नेबी से स्थान तो खाली पड़ीजिवो। कृष्ण आउ एड़े सुंदर दुषिब नहीं। गोटी गोटी करी भाविला, कौन से कृष्ण ठानु नब, नेले तो कृष्ण आउ एमिति सुंदर दुषिब नहीं। शेष कहला, ना ना कृष्ण, मु तो ठारू किछि नेबी नहीं। तो सुंदर रूप सेम थाऊ, मते तो रूप भारी भल लगुची। तोते यही रूप में देखा सब मोर इच्छा। मु जेते डाकिबी तू यही बेश मो पाखु आसबू, मु खाली देखी। कृष्ण कहले, ताही हो। से दिन ठारू चोर वृंदावन रही प्रतिदिन कृष्ण को बाल गोपाल रूप दर्शन कला। यही वात्सल्य स्नेह तार मुक्ति मिलिला। परवर्ती गप, कर्म ही धर्म। गोटे ग्राम रे जड़े दरिद्र मोची वास करुले। तांको नाम थिला रामदास। से सुंदर जोता सिलाई करुले। बराद दे ठीक समय ग्राहक मान को संतुष्ट करी उचित मूल्य नेउथिले। तांको कार्य रे समस्त संतुष्ट थिले। निज कर्म उपरे तांकर अखंड विश्वास थिला। तांकर धारणा सठिक कर्म कले ईश्वर संतुष्ट हुंती। तेणु कर्म को से धर्म बोली विश्वास करुथिले। थरे जने साधु सहित देखाला। साधु जनक तांको डाकी कहले, आसंता मासरे गंगा स्नान जोग अछि, मो सांगर जदि जीव गंगा स्नान करी पुण्य अर्जन करिवो। दासे खूब आनंद रे कहले, बाबा मो जीवन रे अवसर नाही, जोता काम रे समय मिलू नाही। आपण दया करी गंगा स्नान को गला बेले मो बाटरे जीवे, मु चेष्टा करिवे आपण सांगर जीवाको। ये मध्य किछि दिन बीतीगला। गंगा स्नान जोग आसिया पूर्वरु साधु बाबा रामदास घरे उपस्थित हेले एवं कहले, एथर चल जीवा, आउ मात्र 2 दिन समय अछि, चाली चाली जीवा को समय लागिबो,
तेणु शीघ्र गले सुविधार स्नान करिपारिबा। सेतेबेलକୁ दासଙ୍କ हातरे अनेक चोता काम बाकी थाए। से दुखरे कहले मो हातरे एते काम अछि जे नसारे मु जाई परिबि नाही। ठीक समय जोता नदेले गराक ईश्वर असंतुष्ट हेबे। मो भाग्यरे गंगा स्नान जोग नाही। आपण मो पई ए पैसाटी नहीं जांतु। गंगा माता को देई मो प्रणाम जणई देबे। साधु बाबा गंगा स्नान को गले। ठीक समय पहुंची स्नान कले। ए समय तांकर दासं कथा मने पड़ला। से हाथ जोड़ी प्रणाम करी कहले हे गंगा माता ए पैसाटी रामदास मोची देइछि। मिनती करी कहिछि ता पैसाटी ग्रहण करियाकू। ए समय गंगा वक्षरे एक विराट लहरी उठिला एवं ता संगे संगे दुईटी हाथ प्रसारित होई आसिला साधु बाबांक आड़कू। दासंग पैसाटी नहीं सारिया परे हाथ दुईटी पानी रे बुड़ी गला। बाबांक पाटिरू अजाणତରେ बाहरी पड़ला धन्य रामदास, धन्य तुम कर्मनिष्ठा। एते परिश्रम करी गंगा स्नान करी मध्य आमर किछि फल नाही। तुमर कर्म ही माता को संतुष्ट करि पारिछि। कर्म योग ही श्रेष्ठ योग। सत्कर्म द्वारा ही ईश्वर को संतुष्ट करा जाई पारे। अनवरत सत्कर्म करि चलिले जीवन रे शांति मुक्ति मिली पारिबो। यह ही श्रेष्ठ साधना। परवर्ती गप मानव सेवा ही माधव सेवा। कैलाशपुर रे थरे देवदेव महादेव को माता पार्वती पचारिले हे कैलाशपति ये संसार में अनेक लोक शास्त्र अध्ययन करुछंती, धर्म अनुष्ठान करुछंती, भजन कीर्तन करुछंती, दान धर्म करुछंती, किंतु सेमानकर एपरी अधोगति होछि काहेकि? उत्तर महादेव कहले शास्त्र अध्ययन करिवारे कौनसी लाभ नाही जदि विधान गुड़िक आचरण करा न जाए। वर्तमान समस्त धर्मानुष्ठान केवल आत्मस्वार्थ आत्म प्रवंचना पाई उद्दिष्ट। एथरे किपरि आत्मिक उन्नति हेब? लोक माने केवल धार्मिक भाव देखे हेउचंती, जेपरि चिता चैतन्य अरुआ गेरुआ मठ मंदिर इत्यादि। ये सब माध्यम रे केवल भंडामी करा जाउछि। लोक मानकर मन किंतु निर्मल नुहे। सेमानकर गभीर ईश्वर विश्वास नाही। ए विषय परीक्षा करिबा पाई उभय एक मंदिर पाकू छद्मवेश गले। माँ पार्वती एक सुंदरी साध्वी पत्नी रूपरे एवं महादेव एक कुत्सित कुष्ठ रोगी रूपरे मंदिर पाहाच निकट में मागिबा पाई बसी रहिले। जो माने मंदिर को देवदर्शन पाई आसुथिले से माने पार्वती आड़ को काम को दृष्टि चाहूले एवं किछि अर्थ मध्य पकई दी जाउथिले। केतक पचारि बसिले जे पार्वती एते सुंदरी होई काहेकि कुष्ठ रोगी पछरे लागिछंती। यार तो अल्प दिन मध्य मृत्यु हेब। तेणु ता पूर्व अन्यत्र चली जाऊ नाहंती काहेकि? माता पार्वती यह सही पारले नहीं। कहले प्रभु एबे कैलाश को फेरी जीवा। आउ ये नास्तिक मानकर कुत्सित कथा सही हब नहीं। एतिके बेले जड़े दीन भक्त तांको पाख दे जाउथिले। माँ पार्वती को चरण स्पर्श करी मधुर भाव रे कहले माँ आपण धन्य, आपण पतिपरायणा सती साध्वी। तेणु अनवरत पति सेवा करि चलिछंती। आपण को दर्शन रे मु धन्य होईछि। आसंतु मु मध्य आपण को पतिंकर क्षतस्थान सफा करी पटी बांधी देवी। मो पाखरे थिबा छतुआ समस्त भी खाइबा। कथा अनुसार भक्त जनक क्षतस्थान सफा कर दे पटी बांधी देले एवं पाखरे थिबा छतुआ 3 भाग करी 2 भाग दे देले। परे परे प्रणाम करी मंदिर आड़कू देव दर्शन पाई गले। संगे संगे महादेव कहले ये होचंती प्रकृत भक्त जहाँकर कौन से घृणा बा अहंकार नाही। मंदिर को जीवा पूर्वरु से निष्कपट भाव रे सेवा धर्म को प्राधान्य देले। एपरि लोक माने खूब कम मिलती। अन्य माने केवल आत्म प्रवंचना करि चलती। यहाँ पर शिव पार्वती निज रूप धारण करी भक्त मान को दर्शन देले। भक्त मान को परम गति प्रदान करी कैलाश फेरी गले। मनुष्य परमात्मा श्रेष्ठ सृष्टि।
आचरण सिद्ध होई सेवा धर्म करि पारिले ईश्वरଙ୍କ अपार करुणा लाभ करि पारिबे। भगवान मनुष्य को जो भाव सृष्टि करिसंती सेतिरे तांकर दुख पाइबार कौनसी कारण नाही। मनुष्य निज दुखर निजे ही कारण। मानव सेवा को माधव सेवा मन करी आचरण करी चलिले ईश्वर को कृपा और कल्याणर अधिकारी हेब ही हेब। परवर्ती गप अपरिग्रह। राजर्ष जनक दिने राजप्रसाद छात उपर शोइथिले। पाख पाचिरी उपर एक हंस जुगल कथबार्ता हेउथिले। हंसिनी कहिला वर्तमान आर्यावर्तर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होउचंती जनक। हंस किंतु एकथा समर्थन कला नाही। प्रतिवाद स्वर कहिला वर्तमान रैक्य ही श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी। हंसिनी पचारा ये रैक्य किए? हंस उत्तर देला से राज्यर एक गाड़ी वाला। गाड़ी टाणी बोझ बोही जीविका निर्वाह करे। जनक अर्ध जाग्रत अवस्था हंस जुगल कथा शुणुथिले। से पक्षी मानक भाषा बुझी पारुथिले। तांको मनरे प्रश्न उठिला तांको राज्य रे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी ये रैक्य किए? तापरे राजा को निद हेला नाही। रैक्य विषय से जानिबा को आग्रही होई पड़िले। सकाळ हेला तांको बड़ अस्थिर लागुथाए। राज कर्मचारी माननकु आदेश देले शीघ्र रैक्य को खोजी बाहर कर एवं यथाशीघ्र तांको पाखरे उपस्थित कराओ। कर्मचारी माने विभिन्न दिगरे बुली खोजिले। बहु कष्टरे गाड़ी बहुथिया अवस्था रैक्य को देखाला। तांको राजादेश जणै दियागला एवं यथाशीघ्र राजा पाखु जीवापे अनुरोध करागला। रैक्य किंतु ये निमंत्रण अस्वीकार कले। से कहले मु मोर कर्तव्य कर्म करुची। कार्य शेष न हेबा पर्यंत केउठाकु जाई परिबि नाही। मोर बा राजा पाखरे की कार्य अछि? से तांको कर्म करुछंती, मु मध्य मो कर्म करुची। मोर वृथा समय अपचय करिया को इच्छा नाही। कर्मचारी माने फेरी जाई राजा को ए विषय जणाइले। एथर राजा जनक निजे रैक्य पाखु चलिले। गाड़ी टाणी जोठी रैक्य जीवन निर्वाह करुथिले जनक सेठारे पहुंचिले। राजा रैक्य को देखि भाविले ये तो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी एपरी कष्ट कार्य करुछंती काहेकि? तांकर सुविधा पई किछि धन दान करिया को चाहिए। फल तांको ए प्रकार कष्ट सहिया को पड़िबो नाही। रैक्य राजांकर एपरी दान को अस्वीकार करी कहिले महाराज ये मोर दारिद्र नुहे बरं ब्रह्म चेतनार अपरिग्रह। ये कर्म हराइले मो ठारू ब्रह्म तेज दूर होइजिवो। जनक किछि दिन सेठारे अवस्थान करी साधु संग फलरे जानी पारिले ब्रह्मज्ञानी विलासी हेबा उचित नुहे बरं कठिन परिश्रमी अपरिग्रही हेबा उचित। या फलरे नूतन दिग्दर्शन पाइले। राजा को फेरी निज हाथ रे चाष करवा आरंभ कले। श्रम माध्यम रे उपार्जन करी जीविका निर्वाह करी चलिले। राजकार्य चलाइवा सहित अन्य कार्य मान मध्य कले। फलस्वरूप से जगत जननी माँ सीतांकर जनक होई पारिथिले। एथुरु स्पष्ट जना पड़े जे गाड़ी चलाई जीविकार्जन करुथिबा रैक्य केड़े महान। यह ही ब्रह्मज्ञानी अपरिग्रहींकर जगत को शिक्षा। परवर्ती गप सहिष्णुता। तुकाराम भारत वर्षर साधु मानक मध्यरे जने साधु महात्मा भाव विशेष परिचित। से भगवान को दर्शन लाभ करी धन्य होइथिले। से बड़ गरीब थिले। दुई बेला अन्न संस्थान करबा तांको पक्षरे संभव हेउ नथिला। तांको स्त्री संसार परिचालना करि पारु नथिबारु बारंबार उपवास रहुथिले। स्वामी को ऊपर प्रचंड क्षुब्ध थिले। फलरे स्वामी को क्रोधरे गालीगुल सर्वदा करुथिले। तुकाराम को अनेक गंजना सहयोग पड़ुथिला। तथापि स्त्री को से किछि कहु नथिले। बारंबार एपरि घटिबा द्वारा स्त्री को कटु कथा सही न पारी
से दिने घर छाड़ी दूर एक निर्जन परित्यक्त गृह उपस्थित हेले। प्रभु को डाकिवा सुविधा हेबो भाबी निर्जन सेठार रही गले। 4 दिन पर पत्नी जिजाबाई सेठारे पहुंची पाद टिपि टिपि स्वामी को धरी पकईले। शपथ कले आउ स्वामी को कटु कथा कहिबे नाही, तांकरी मत और पथ अनुसरण करिवे। एथर तुकाराम घर को फेरिले। परदिन घरे थिबा समस्त आसवास पत्र ग्रामर दुखी दरिद्र को डाकी बांटी देले। स्त्री रागरे कंपु थांती, घरे खाद्य नाही। उपवासर तृतीय दिन तुकाराम रास्ता ऊपर को आसिले। मुखरु अनवरत कुष्ठ नाम बाहरु थाए। नाम विभोर अवस्था से निजकू निज स्त्री को तथा घर अवस्था मध्य भूली जाइथिले। कृष्ण कृष्ण डाकी डाकी पागल परी चली थांती। ए समय गोटे गोरु गाड़ी रे जने आखु बोझे करी जाउथिला। से भक्त को देखी गाड़ी रू ओह्लाई गाड़ी रू केते खंड आखु आनी तुकाराम को देला। नम्र भाव में कहला, प्रभु ये सामान्य केते खंड हेउची आखु देउची, ग्रहण करंतु। भगवान को असीम कृपा भावी तुकाराम आखु केते खंड धरी घर को फेरेले। आनंद रे घरे पहुंची डाक देले, आगो शुणुछ कुआडे गल? प्रभु को अपरिसीम कृपारू सुंदर प्रसाद नहीं आसी, खूब मीठा रस खाई देख ना। क्षुधा उपवासी स्त्री पदा को बाहरी आसिले। कर्कश स्वर कहले, एपरी स्वामी को नहीं घर करने अपेक्षा पानी रे बुड़ी मरिया भल। खाली कुष्ठ नाम कले पेट तो पुरिब नाही, संसार कथा चिंता करिया हेबो। जदि खाइया को देवार क्षमता नाही तेबे बाहा हेउतलो काहींकी? खाली भाग्य उपवास उपवास केते दिन भोक उपास रे ए जीवन रहिबो। एपरी क्षुधारे कुष्ठ नाम कोउटु आसीबो? तुकाराम कहले, खाइया को देवार मालिक तो मु नहीं, सबु से कुष्ठ को इच्छा। आमे केवल माया रे भ्रमी हेउथाई। आस राग करनी, आकु तो खाई दियो, ये तो प्रभु को प्रसाद। यह कोई स्नेह रे हाथ को आख खंड बढ़े देले। स्त्री एथर आउ सह्य करि पारले नाही। भोक उपवास जोगु ज्ञान शून्य होई पड़िले। हाथ रे मोटा आखु खंड धरी स्वामी को पिटिया को लागिले। तुकाराम निर्विकार, मुखरे केवल कुष्ठ नाम भाबु थांती ईश्वरंकर एक विचित्र लीला। चक्षु मुद्रित करी गाई चली थांती कुष्ठ नाम। चक्षुरु अनवरत प्रेमास्त्र झरी पड़ू थाए। आघात परे आघात, आखुटी खंड विखंड होईगला। स्त्री पिठू पिठू क्लांत होई पड़ले। हठात होश फेरी आसिला। भाविले, मु ये कौन कली? देवतुल्य स्वामी को प्रहार कली। छी छी, या ठारू मृत्यु बरं श्रेय। तुकाराम माड़ खाइबा परे आखुर खंड विखंड अंश गोटे धरी स्त्री को स्नेह रे कहले, भल हैला, बड़ आखु गुड़िक खाइबा को असुविधा होता, प्रभु को कृपारू खंड विखंड हो गला। एथर खाइबा को भल हम। तापरे स्त्री मथारे हाथ बुले कहले, राग करनी, कृष्ण को प्रसाद खाई दियो। स्वामी स्पर्श रे ईश्वर को कृपारू धीरे धीरे स्त्री तामसिक भाव कटिगला। परितापरे जर्जरित स्त्री स्वामी को सहनशीलता कथा भावुथिले। विवाहित जीवन अनेक कथा तांकर मने पड़ीगला। चक्षु दे जलधार परितापरे गड़िया को लगिला। परवर्ती कप, दूषित अन्न। कुरुक्षेत्र युद्ध शेष होता है। आर्यावर्तर असंख्य वीर धराशयी हो जाती। चारिआडे हाहाकार, विधवा मानकर व्याकुल क्रंदन, कूड़ कूड़ शव मध्य श्वान श्रृगाल मानकर चित्कार, कौरव मानकर वंशनाश, पांडव 5 भाई व्यतीत केही बंची न थांती। ये समस्त नरसंहार रक्तपात देखी राजा युधिष्ठिर चिंतामग्न। धन पाई राज्य पाई ये प्रकार वंशनाश सही पार नथिले। तांकरी आखि आगरे टली पड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सकल बंधु बांधव, पुत्र अभिमन्यु, एपरी अनेक वीर।
तांकरी पाई ये ध्वंस लीला ये समस्त पाई से निजको दायी करुथिले। अश्रु विमोचन कले राजा युधिष्ठिर। शोक दग्ध अंतर रे किए बा देव सांत्वना एपरी अवस्था रे उपस्थित हेले भगवान श्रीकृष्ण। सादर संभाषण परे राजा युधिष्ठिर कहले हे केशव मो पाई ए वंशक्षय नरसंहार हैला मु आउ सही पारु नहीं प्रभु। आपण कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन विषाद देखि गीतार अवतारणा करथिले एबे मो पाई पुणी थरे गीतार महत् पाणी उपदेश छळे कहंतु एथिरे मोर शोक दग्ध अंतर शांत हेबो। भगवान श्रीकृष्ण सामान्य हसी कहले एथिपाई निजको दायी करिवार किछि कारण नाही। जन्म मृत्यु कहार अधीन नुहे महाकाल यार नियामक निजर कृतकर्मर फल से भोग करिसंती। तुम अनुरोध रे पुणी थरे गीता अवतरण करिवा संभव नुहे कारण मु एबे से श्रीकृष्ण नुहे। सेतबेले मु जोगयुक्त अवस्था रे थिली वर्तमान से अवस्था नाही। तुम मानक पई मंगल हेबो पितामह भीष्म ठारू महत् कथा सुनिबा। फल भगवान श्रीकृष्ण पंच पांडव द्रौपदी एवं अनेक ऋषिमुनि पितामह पाखु गले। सेतबेले भीष्मदेव सरसज्जार दुख भोग करुथिले। भगवान श्रीकृष्ण प्रथमे पितामह पाखु जाई पांडव माने आसीथिबा कथा कहिले एवं सेमाने किछि महत् कथा सुनिया पाई आसीथिबार कथा मध्य कहिले। भगवान श्रीकृष्ण करस्पर्श रे समस्त जंत्रणा उपशम हैला। यहाँ परे महाभारत रे युधिष्ठिर भीष्म संवाद वर्णन करा जाइछि। युधिष्ठिर राजनीति धर्मनीति ठारू आरंभ करी समस्त प्रश्न पचारुथांती पितामह सुंदर भाव रे उत्तर देउथांती। एपरी अवस्था रे दिने द्रौपदी सामान्य हसी देले ताहा पितामह को आखिरु एड़ाई गला नाही। द्रौपदी को से पचारिले माँ तुमको ये आलोचना भल लागिला नाही हसिल कहीं। द्रौपदी अभय पाई कहले आपणकर मने थिबो जो दिन कुरु सभा मध्य दुशासन आपण सम्मुख रे आपण कुलवधु को विवसन करुथिला। आपण आंठुरे मुह माड़ी बसिथिले आपण को मु केते अनुनय विनय करिछि। आपण सेदिन प्रतिवाद करिवा दूरे थाउ पार्टी मध्य खोलिले नाही। यह आपण को नीरव समर्थन बोली धरी नहीं से दिन। आपण को धर्म से थिला केउठी आज आपण ठारू धर्मर बाणी शुणिया बेले मोर से दिन कथा मने पड़ीगला तेणु हस बाड़िला। पितामह उत्तर देले माँ तुम्हें जो अभियोग कल ता सत्य सेतबेले मु दुर्योधनर दूषित अन्न खाऊथिली तेणु प्रतिवाद करिवार क्षमता मोर नथिला। से दिन से नीरव समर्थन जोगु आज ये सरसज्जा जंत्रणा भोग करुछि। यह मोर कृतकर्मर फल एबे तो आउ कहार दूषित अन्न खाऊ नाही तेबे मो भविष्यत वंशधर को धर्म उपदेश देवार आपत्ति अछि कोठी। ए कहानी रु एतिक शिक्षा मिले जे कौनसी व्यक्तिर असत अन्न भोजन करिया फल से व्यक्तिर पाप खाइथिया व्यक्ति को ग्रास करे निजर सत उपार्जित धन रे प्रतिपोषण हेवा धर्म सम्मत। एथिमे सर्वदा सावधान हेवा उचित। परवर्ती गप सहनशीलता। गोटे बण पाखरे जड़े साधु महात्मा रोते से बड़ अतिथि परायण थिले। प्रतिदिन अतिथि भोजन न कराई निजे भोजन करू नथिले। अतिथि को से खूब भक्ति करुथिले। तांको कुटीर पाख दे जी जाउथिला से ताकू डाकी भोजन कराउथिले। अतिथि सेवा भगवान को सेवा बोली भावुथिले। कुटीर आगरे से सबुदिन चाही बसी थांती केतेबेले अतिथि से बाट दे जीवे। दिने से बाट दे केही लोक गले नाही। साधु महात्मा मन दुखे बसी रहिले। नियम भंग हेबा आशंकारे से अधिक व्याकुल होई उठिले। ठीक यही समय जड़े 100 वर्षर बुद्ध से पथ दे आसिले। से बड़ क्लांत शांत जना पड़ुथिले। साधु बाबा तांको अटकी गोड़ धोईदेले उपयुक्त आसन रे बसाइले। आदर सहित पत्थर रे भोजन परिवेषण कले। वृद्ध लोकटी भगवान को भोग न लगाई संगे संगे भोजन करिया आरंभ कले।
यह देखि साधु बाबा तांको पचारे आपण जो ईश्वर दान में बंची न दे भोजन कले किपरि। वृद्ध उत्तर देले मु कौन ईश्वर बा देवता को माने ना खाद्य खाइबार मोर आनंद ईश्वर सहित मोर की संपर्क मते भोजन समय विरक्त कर नाही। ए प्रकार नास्तिक वचन शुणी साधु बाबा रागी उठिले एवं वृद्धंकर खाइबा थाली ओटारी नहीं फेंगी देले। किछि न भावी वृद्ध को कुटीर बाहर करदेले। राति वृद्ध केउठी रहिबे से कथा मध्य भाविले नाही। वृद्ध दुखरे जंगल पथरे चलीगले। राति साधु बाबा स्वप्न देखिले। स्वप्न भगवान कहूले से वृद्ध को तुमे जे प्रकार व्यवहार देखाइल ताहा द्वारा तुमर अतिथि सत्कार पुण्य नष्ट हो गला। स्वप्न साधु बाबा पचारे से तो आपण को निंदा गला मु आपण को निंदा सही पारि था केमती फल क्रोधरे ताकू तड़ीदेली। से ईश्वर द्रोही भगवान बुझाई कहले से तो सबुदिन मत अपमान करुछि तथापि मु 100 वर्ष है सही पारुछि तुम्हें किंतु गोटे दिन सही पार नहीं। साधु बाबा निदर उठी कहले हे भगवान हे आपण महान आपण केते नास्तिक केते पापी मानकर कटु कथा सही पारुछंती मु किंतु अधम गोटे दिन सही पारे नहीं मते क्षमा करंतु प्रभु। सहिबा भली महत् गुण किछि नाही। असहिष्णु हेले मानसिक भारसाम्य नष्ट होता है। ये साधना रे व्याघात सृष्टि करे। खोजी तो तेरे कलिया तोरा रे खोजी तोते ए भरोसा धरार सते की आपण रखलु मते ए जीवन सुआ भासी भासी जाओ ए जीवन सुआ भासी भासी जाओ मिसिबाको तो चरणे मिसिबाको तो चरणे कला कला